Yes, brother. हम हिंदू हैं तो हम अलग अलग तरह के से वर्शिप करते हैं। हम हिंदू हैं ना, तो अलग अलग टाइप से वर्शिप करते हैं, तो उनको मानते हैं। हमको कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं कि आप कौन सी तरह से वर्शिप करते हैं, कि उससे कोई मायना नहीं रखता। आप कौन से दिल से करते हैं उसको ज़्यादा मायना रखते हैं। तो हमारे फिलॉसफी के हिसाब से तो कोई भी ह्यूमन, अभी आप बोलते हैं कि मोहम्मद पैगंबर से ऊपर कोई नहीं हो सकता है आपके हिसाब से, मगर हमारे फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी इंसान वो लेवल तक पहुंच सकता है। तो आपका क्या कहना है, आप वो लेवल तक पहुंच सकते हैं? The brother has a question that he is a Hindu and he has different types of worship. He has no problem in any type as long as it's done with the heart. दिल से किए तो प्रॉब्लम नहीं। इसे दिल से करने के बाद भी सही करना चाहिए। मैं दिल से अगर चोरी करता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आपको। मैं दिल से करो लेकिन सही चीज करो। हाँ, क्या करते आगे ना आप फिर क्या करते भी, पूजा करते किसकी करते हैं इंपॉर्टेंट, क्यों करते और किसकी करते, कैसा करते, बराबर कि नहीं? अगर आप दिल से करो लेकिन सही चीज करो, दिल से भी करो, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट दिल के साथ किसकी करते क्यों करते वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं दिल से मैं चोर की पूजा करने लगूं, आप मानेंगे? मैं दिल से पूजा करने लगूं रावण की या चोर की, आप मानेंगे? आप बोलेंगे अरे कहीं तो राक्षस की पूजा करता है। हाँ, नहीं गलत है ना, आप मानेंगे उसको? मानेंगे लेकिन बोलेंगे मानेंगे है लेकिन नीचे है, ऊपर नहीं है। हम चाहते सब लोग ऊपर है ना, आप चाहते क्या ऊपर है नीचे रहे? ऊपर है, माशाल्लाह, हम भी चाहते क्या ऊपर है। हाँ, तो इसके अंदर दिल से करो लेकिन सही चीज करो। एक सही चीज दो तरीके से हो सकती है। वन गुड थिंग कैन बी इन टू डिफरेंट वेज। इफ बोथ आर राइट वी एग्री विद इट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, दैट according to me, and I said earlier, that Prophet Muhammad is the highest. Highest means after Almighty God. I said that after Almighty God is number one. That is in following commandments. Then comes the Sahabas, the companions. So the question is that in their philosophy, a person can rise to any level. He asked me, can I come to the level of Prophet Muhammad? Never. I can try, I can strive. I should try. I can never reach. Why I cannot reach? I know that he was a messenger of God. Why I cannot reach? It is mentioned in the hadith that the prophets are on the highest level. If I believe in God, if I believe in the Quran, and if I believe that whatever prophet commands we have to follow, from the Quran and the hadith we come to know that the highest level of the human beings are the messengers. I am not a messenger. Why? Allah has clearly mentioned in Surah Azab, chapter 33, verse number 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. The Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets. Allah is all-knowing, full of knowledge. After Prophet Muhammad, anyone who says he is a messenger, he has to go to a psychiatrist. Why? I have tested this book. See, once you come to know that this book in mathematics is authentic, you have tested it, then what the book says you have to follow, unless the book is wrong. So when the book, the Quran, and the Sahih Hadith tell me that no human being can reach the level of the Prophet, if I start saying, I can reach, yes, I should strive to reach. Now, while striving, I may come from lower level to maybe 20% high, 30%, 40%, closer. I'm trying to emulate, trying and following 100%. For example, if the teacher has clearly said, in English language, no one can get 100%. Why? There are some rules. In maths, yes, you can get. Right? So here we realize that when it's clearly mentioned in the Quran and the Hadith, that no other human being can come to the level of the messenger. They were chosen people of Almighty God. I will strive to come close. I can come close, but not on the same level. That's the reason in your Hindu philosophy, not only can we go to the level of messenger, you can even go to the level of God. And then, if you become God, people have to worship you. Right? Right or wrong? So why limit? That means even you can become God, right or wrong?
कैन यू बिकम गॉड? कैन यू बिकम गॉड ब्रदर? अरे व्हाई नॉट गॉड? व्हाई लिमिट? देयर आर लिमिटेशंस. व्हाई? प्यारा गॉड खुदा क्यों नहीं हो सकते? आप खुदा क्यों नहीं बन सकते? मैसेंजर पे क्यों रुक रहे? बट खुदा क्यों नहीं बन सकते? क्यों? खुदा से शादी हो सकती है. खुदा से शादी हो सकती है. को शादी हो सकती है? हाँ. खुदा को शादी की जरूरत है बच्चे पैदा करने के लिए? शादी नहीं, शादी मीन्स शादी का आपका वो ये सवाल कहना नहीं था कि तुम- क्या भक्ति करने हाँ, के लिए. भक्ति, और हाँ. शादी लफ्ज मत इस्तेमाल करो ना. वो लेवल पे नहीं बोला तो आप इसीलिए जो बोलते हैं हमारे इसके अंदर भी आप भाई ठीक है, आप भक्त बन सकते हैं, लेकिन इस्लाम में और जो हिंदुइज्म में फर्क है, आपके रिलीजन के अंदर आप सब कुछ निछावर करके आप सब दुनियादारी छोड़ सकते. इस्लाम के अंदर दुनियादारी दीन का हिस्सा है. आप जब तक शादी नहीं करेंगे आप अच्छे मुसलमान बन नहीं सकते. दुनियादारी संभालो. आप सब छोड़ के बोलेंगे मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, छोड़ मत दो, साथ साथ लेके करना ही टेस्ट है. अगर मैं बोलूँगा मैं क्या करूँगा, बाकी कुछ चीज़ नहीं पढ़ूंगा स्कूल में, सिर्फ मैथमेटिक्स ही करूँगा, साइंस नहीं करूँगा, हिस्ट्री नहीं करूँगा, ज्योग्राफी नहीं करूँगा, हिंदी नहीं करूँगा, सिर्फ मैथ्स करूँगा, तो फेल हो जाऊँगा. हाँ ये मैथ्स में मुझे स्पेशलाइज करने का है, लेकिन हिस्ट्री में कम से कम पास तो करूँ 35%, साइंस में कम से कम 35% तो लूँ, तो बाकी सब्जेक्ट में कम से कम पास करो, स्पेशलाइज करो. जब मैं मेडिकल डॉक्टर बनता हूँ, आई एम डूइंग MBBS, फिर मैं स्पेशलाइज करता हूँ, फिर मैं करता हूँ MBBS के बाद MD, फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ हार्ट, DM, ब्रेन. फिर जब मैं हार्ट का स्पेशलाइज करता हूँ, ब्रेन की पढ़ाई ज़रा कम रखता हूँ. लेकिन अगर ब्रेन के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ तो बेचारा हार्ट को क्या मैं सुधारूंगा. बेसिक ब्रेन के बारे में जाऊँगा तो ही हार्ट के ऊपर जा सकता हूँ मैं ना. तो इस्लाम के अंदर भी ऐसा लॉजिकल है. आई कैन बिकम अ फुल टाइम दाई, बट मैं बोलूँगा दाई बनने के लिए शादी नहीं करूँगा. शादी मतलब किससे? अल्लाह की बात नहीं हो रही है, औरत से, लड़की से. शादी नहीं करूँगा, बच्चे नहीं देखूंगा, कुछ नहीं करूँगा, बस सिर्फ दावा करूँगा. वो भी गलत है. दावा करो, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छे शोहर भी बनो, एक अच्छे बाप भी बनो, एक अच्छे बेटे भी बनो. भले मैं सबसे अच्छा बेटा नहीं बनूँ दुनिया में, कम से कम 35% तो करो पास. समझे? मैं सबसे अच्छा शोहर नहीं हूँ, कम से कम 35% पास तो करो. अब समझे? मैं सबसे अच्छा बाप नहीं हूँ, कम से कम 35% दाई में स्पेशलाइजेशन. इसीलिए इस्लाम में वो मकाम आपका कैसा है, भगवान तक नहीं पहुँच सकते. क्यों? क्योंकि आप पता है कि आप भगवान नहीं बन सकते. उसी तरीके से भगवान इंसान है ही नहीं, इसलिए पहुँच नहीं सकते. पैगंबर इंसान है, लेकिन एक चुने हुए इंसान है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन इंसानों को चुना है. वो एक अलहदा मकाम पे है, लेकिन इंसान है, भगवान नहीं है. हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनकी इबादत नहीं कर सकते, उनकी इज्जत कर सकते, उनका कहना मान सकते. तो ये डिफरेंस है. और माफ़ करना, अभी शादी की बात है, भक्ति की बात है. देवदासी का नाम सुने? देवदासी, हाँ है ऐसा सिस्टम देवदासी था. क्या करते? देवदासी शादी करते देव के साथ, हाँ, और जाते किसके साथ? हिमालय जाते, संत लोग जाते. देखो ये स्टैटिस्टिक्स है, संत लोग जाते हिमालय पे तपस्या करने के लिए. किसकी तपस्या? भगवान की. उनके पीछे देवदास जाते, काहे के लिए? तो ये रूढ़ी है, चेंज होती जाती है. हाँ, लेकिन अगर हम आप बोलते शादी किए भगवान से, जाते हैं संत के साथ, काहे के लिए? इसीलिए अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में, सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, क्या हमने मर्द और औरत के बीच में प्यार डाला है. अगर आप लड़की को देखेंगे, आपका सेक्सुअल इंस्टिंक्ट उभरना ही चाहिए. अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको साइकेट्रिक का जाना चाहिए. आप बोलेंगे मैं लड़की को देखता हूँ, घूर घूर के देखता हूँ, कुछ नहीं होगा, तो प्रॉब्लम है. इसीलिए आया हिजाब इस्लाम के अंदर. सूरह आज़ाब में चैप्टर 33 वर्स नंबर 59, ओ प्रॉफिट, टेल योर वाइफ्स and your daughters and the believing women that when they go abroad they should put on the cloak so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. तो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जब औरतें बाहर जाती है तो ऊपर चादर ओढ़ो, हिजाब में रो, पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखाई दे सकता है. बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ, मैंने कहा ना बाइबल के अंदर भी कि सिर को ढको.
हो सकता है क्या डेविड भाई, brother David will go and tell his wife that Bible says you should cover your head, and maybe he will tell his sister or his mother that I have just come to know that you should dress up modestly like Mother Mary. So maybe he will go and tell his sister tomorrow or today, or his mother, and if he's married, I don't know whether he's married or not, will tell his wife that, see, this is what is mentioned in the Bible. Modesty. Same is mentioned Veda. Veda पढ़ेंगे ऋग वेदा के अंदर. Brahma has created you as a woman. Therefore, lower your gaze and cover your head. Wear a veil. आपके वेदा में भी लिखा हुआ है. तो वेदा में भी लिखा हुआ है कि खवातीन अपना सिर ढाकना चाहिए, नज़र को नीचे करना चाहिए. If you refer to my video cassette, similarities between Hinduism and Islam. Have you seen it? No. Please can you give one more VCD? Similarities between Hinduism and Islam to our brother. And what I spoke about Christianity, I can again speak for 3-4 hours about Hinduism. Similarities. And what we should agree, what is different, forget about it. See, brother, both of you. What Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 64, come to common terms as been asked you. See, instead of arguing, Bible is the word of God, temporarily keep it aside. Veda is the word of God or not, keep it. You agree it's the word of God? Fine. You agree Bible is the word of God? Fine. I agree Quran is the word of God. What is common? Let us agree to follow. Simple. What is different? We'll think of it tomorrow. At least what is common? Bible says there's one God. Veda says there's one God. Quran says there's one God. There's one God. Bible says don't do idol worship. Veda says don't do idol worship. Quran says don't do idol worship. We stop doing idol worship. Bible says that Prophet Muhammad is going to come. Veda says Prophet Muhammad is going to come. Quran says that Prophet Muhammad is the last messenger. We believe in Prophet Muhammad. Bible says that be modest. Women should be dressed up, should cover the head. Veda says that. Quran says that. The woman should be dressed up. Bible says don't have alcohol. Veda says don't have alcohol. Quran says don't have alcohol. We don't have alcohol. Bible says don't have pork. मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि सूअर का गोश्त मत खाओ. So we don't have pork. So at least let us agree to follow what is common. Difference बाद में देखेंगे. कम से कम what is common, at least let us agree to follow और दिल से. दिल से, ठीक है ना?